Hello, children. This is Manish Yadav, your English teacher, and today we shall explain the third chapter of class ninth from Behave, the little girl, एक छोटी सी बच्ची. Before you read, do you feel you know your parents better now? क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छा जानते हैं? Then when you were much younger, उस समय से जब आप बहुत छोटे थे. मीन्स जब आप बहुत छोटे से तो अपने पेरेंट्स को आप नहीं समझ सकते थे, नहीं जानते थे. क्या आपको लगता है कि आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. Perhaps it seems to you and the reason for some of their actions. You understand the reasons of some actions of theirs. Why do they cry at you that made you to be upset earlier? पहले आप upset हो जाया करते थे. You got disturbance. Now this story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. This story is about a little girl. Okay, in this chapter we would study about a little girl who is very younger, and this is the story which can be found in every homes, in every houses, because mostly girls are there in a family. So at their childish days it happens, जब छोटी बच्चियां घर पे होती हैं या बच्चे, तो ये होता है कि कुछ लोगों से वो बहुत डरते हैं. Okay, they are afraid of too much with some of the familiars, but some of the familiars are very frank with them, so they do not be afraid of these types of familiars. But in this chapter, a girl is afraid of her father. Mostly he cries, uh, he reacts angrily, he cries at her, so she is afraid of uh, to be scolding. डरने से उसका जो पैशन है वो बिल्कुल वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपने पापा के सामने. वो बहुत डरती है उनसे, क्योंकि वो हर टाइम उसको डांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं घर में. तो वो बच्ची बहुत डरी डरी सी और सहमी सहमी सी रहती है. सो लेट अस go through the text. To the little girl he was a figure to be feared and avoided. For that little child, he refers to her father. ये उस बच्ची के पिताजी के लिए बोला गया है. ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, एक डरावना सा चेहरा. उस बच्ची के लिए उसके पापा का जो चेहरा था, उसके पापा का जो व्यक्तित्व था, वो बिल्कुल डरावना था. एंड अवॉइडेड, और वो उनको इग्नोर भी करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. बीइंग अ फादर, he kissed her before leaving from home to his office. घर से ऑफिस जाने से पहले वो उस बच्ची के रूम में आते थे और उसको एक कैजुअल किस देते थे, जैसा कि हम छोटे बच्चों को किस देते हैं. नाउ टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और वो रिस्पॉन्ड क्या करती थी? गुड बाय फादर. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriages growing fainter and fainter down the long road. और उसको इतना रिलीफ मिलता था when her father went towards the road towards the office. She got a sign of relief, fainter and fainter down the long road, as the sound was being fainter of his going. She felt a great sight of relief. उसको बहुत आराम मिलता था. जैसे जैसे उनके पैरों की चहलकदमी या जो आवाज़ थी वो कम होती जाती थी, उसको लगता था कि हाँ, मेरे पापा दूर जा रहे हैं, मीन्स ऑफिस की तरफ जा रहे हैं. तो उसको बहुत रिलीफ होता था. Now in the evening when he came home, she stood near the staircase and heard the loud voice in the hall. और जब उसके पापा वापस घर आते हैं तो वो छोटी सी बच्ची डाउन स्टेयर केस के पास खड़ी होती है और जोर जोर की आवाज़ सुनती है, जो कि उसके पापा की आवाज़ होती है. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम.
her father commands that he wants a cup of tea in his drawing room. Has not the paper come yet? अभी पेपर नहीं आया. Mother, go and see if my papers are there. माँ, जाओ देखो, हो सकता है मेरे पेपर्स वहाँ पे हों. And bring me my slippers. और मेरे चप्पल लाओ. तो ये तो होता है, हर परिवार में होता है. जो लोग भी ऑफिशियल या कहीं काम करते हैं तो सुबह में ऑफिस की तरफ जाना, फिर शाम को घर पे आना. तो घर पे जैसे ही आएंगे तो मेरा चप्पल कहाँ है, मेरा शर्ट कहाँ है, मेरा टी शर्ट कहाँ है, मेरा ये कहाँ, वो कहाँ है ना. सो इट हैपन्स इन ईच फैमिली. हर परिवार में ऐसा होता है. नाउ लेट अस गो थ्रू द सेकेंड पैराग्राफ. केजिया. नाउ दिस इज़ द नेम ऑफ दैट लिटिल क्यूट चाइल्ड. उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची का नाम है केजिया. मदर वुड कॉल हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. मम्मी उसको बुलाती है कि बेटा, मेरी प्यारी सी बेटा, अगर आप बहुत अच्छी बेटा हो तो नीचे चले आओ और पापा के बूट्स निकाल दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स. धीरे धीरे बच्ची स्टेयर से होते हुए नीचे आती है. मोर स्लोली, बहुत धीरे धीरे. स्टिल अक्रॉस द हॉल बिकॉज शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर फादर. पापा के सामने जाना है तो बहुत बड़ी डर है. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम स्लोली एंड ग्रेजुअली she pushes द ड्राइंग रूम्स डोर. और धीरे से वो ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती है. By that time he had his spectacle and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और इस टाइम पापा चश्मा पहने होते हैं और चश्मे के ऊपर से देखते हैं. एंड इट वॉज़ वेरी टेरिफाइंग फॉर द लिटिल गर्ल. उस बच्ची के लिए बहुत ही डरावना होता है. बहुत सारे लोग चश्मे पहनते हैं और चश्मे के ऊपर से देखते हैं, तो थोड़ा सा टेरिबल है ये उस बच्ची के लिए. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? केजिया, हर फादर कॉल्स हर दैट कम एंड टेक takes these boots off and then outside. Have you been a good girl today? Did you make nuisance today? क्या तुमने कोई बदमाशी करी घर पे? अच्छे से थी ना? I don't know father. Kezia, hesitantly she says that मुझे नहीं पता पापा मैं कैसे थी. मतलब बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है. ठीक है. Now here the word meaning has been given. Sleep down, come down quietly and unwillingly. बिना इच्छा के वो बच्ची धीरे धीरे नीचे आती है. You don't know, if you shudder like that mother will have to take you to the doctor. अगर तुम ऐसे हिचकिचाओगी तो फिर माँ तुमको डॉक्टर के पास ले जाएगी, ऐसा पापा कहते हैं. Now third paragraph. She never stuttered with other people. वो इस तरह से किसी और के साथ नहीं हिचकिचाती थी. Had quite given it up and stopped doing it. इस चीज़ को करना बंद करो, but only with father. ये जो है सिर्फ पापा के साथ था. Because then she was trying too hard to say to words properly, because she could not speak fluently without fear in front of her father. अपने पापा के सामने वो बिना डर के बात नहीं कर सकती थी. What's the matter? क्या बात है? What are you looking so raised about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. What are you looking so raised about? क्यों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? Mother, Ma, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. इस बच्ची को तुम संभालो, समझाओ, ऐसा ना हो कि कहीं ये जो है सुसाइड कर ले. Here Kezia, carry up my teacup back. ये टीकअप मेरा जो है वापस ले आओ. To the table carefully. केयर के पास जो है. About commit suicide. Now, he was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Her father was so big for her. उसके पापा उसके लिए बहुत बड़े, बहुत ही डरावने थे. His hands, his necks, उनके गर्दन, उनके हाथ, especially his mouth,
जब वो अपने मुंह को खोलते थे, चिल्लाते थे, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ गैंट। व्हेन केजिया वाज थिंकिंग अबाउट हर फादर, जब वो अपने पापा के बारे में सोचती है, इट सीम्स टू हर दैट शी वाज थिंकिंग अबाउट अ गैंट, तो एक राक्षस के बारे में सोच रही होती है, ऐसा उसको लगता है। अब सोच लीजिए, इतनी डरी और इतनी सहमी हुई बच्ची। आजकल के पेरेंट्स, आजकल के चिल्ड्रन अपने माँ बाप से डरते ही नहीं है, गाली देते हैं। दे अब्यूज देयर पेरेंट्स, ओके, बिकॉज पेरेंट्स डू नॉट give that much caring, okay, they do not understand what is the result of affection and love more than need. So we should love our children in a limit, and bitter, the love is very sweet, but slap, thappad, it is very bitter. But what is beneficial for our children, we must know. हमारे लिए क्या अच्छा है ये हमको जानना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है ये भी हमें जानना चाहिए। Now, fourth paragraph. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे के दिन जो ग्रैंड मदर हैं केजिया की, जो दादी माँ हैं, उसको भेजती हैं किसके पास? मम्मी और पापा के पास, उनसे बात करने के लिए। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. और बच्ची हमेशा अपने पापा को सोफ़ा पे स्ट्रेस करते हुए, ठीक है, लेटे हुए, मम्मी को पेपर पढ़ते हुए, his handkerchief on his face, और उसके पापा जो है सोए होते हैं सोफ़ा पे, तो अपने चेहरे पर जो है हैंडकचीफ रुमाल रखे होते हैं। his feet on one of the best cushion and sleeping soundly and snoring, और वो खर्राटे लेकर के सो रहे होते हैं। So obviously a child will never go to her father if he would react like that. अगर ऐसे कोई पापा करेंगे कि दिन भर ऐसे काम करें हर रोज़ हफ्ते में, ठीक है, और ऐसे ही चिल्लाते रहें, एक दिन घर पे रहना है दिन भर, उस दिन भी वो सो रहे होते हैं, बच्ची से बात नहीं करते हैं, तो शी वुड नॉट गेट अ सिंगल चांस टू बी फ्रैंक विद हर फादर। तो फिर अपने पापा से फ्रैंक होने का उसको चांस ही कहाँ मिल रहा। तो बच्ची काफ़ी डरी डरी सी है। नाउ व्हाट हैपेंस, let me scroll down. The little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. You could see a minute. Yes, as you could see the picture on the screen, this is her father, and he is stressing on the sofa and snoring, sleeping, karate wear, and this is Kezia's mother. She is reading, busy with reading, and this is Kezia, little and cute child. What happens next? She sat on a stool. वो एक स्टूल पे बैठी। Gravely watched him until he woke and stretched. वो चुपचाप बच्ची देख रही है, कितनी प्यारी सी बच्ची है, चुपचाप देख रही है कि पापा आप जगेंगे। And asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. Kezia, ऐसे मत घूरो, तुम एक उल्लू की तरह लग रही हो। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she would make him a pincushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk. तो उसकी दादी माँ, केजिया की दादी माँ उसको बताती हैं कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, जन्मदिन, तो तुम उनके लिए एक फाइन, बहुत ही प्यारा सा जो है येलो सिल्क का जो है कुशन बनाओगी, पिन कुशन, और तुम उनको गिफ्ट करोगी बर्थडे पर। 5वें पैराग्राफ से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग टिल दैट मोमेंट।
विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।